Good morning students, welcome back to online classes. This video is for class 7th, subject is English reader. Beta, in previous videos we have completed chapter 1st translation and today in this video we will start book exercise of chapter 1st. So get ready quick, take out your books and open chapter 1st. See beta, these are the question answers of chapter 1st and I'll send PDF. And you will write down these question answer in your notebook. Okay, it is your homework. Okay beta, you will write down these question answers in your notebook. I'll send to you a PDF. Is that clear? Okay, now come on the next word. Verb. एंटनेम्स. एंटनेम्स क्या होता है बेटा? एज यू नो वेरी वेल, आपके लिए एक न्यू वर्ड नहीं है ये एंटनेम. एंटनेम होते हैं बेटा अपोजिट. क्या होते हैं? अपोजिट्स. ओके, रीड करते हैं एक बार. रीड दिस सेंटेंस. आपने ये सेंटेंस रीड किया. हाउ कैन अ पॉपर बी द फ्रेंड ऑफ अ वेल्दी मैन? चैप्टर में रीड किया था ना. और एन इग्नोरेंट पुअर ऑफ अ लर्नेड स्कॉलर और A coward of a hero. आपने ये चैप्टर में रीड किया था. The word pauper and wealthy have opposite meaning. pauper और wealthy का क्या है? Opposite meaning है. ठीक है. The word ignorant and learned are also opposite in meaning. और ये भी ignorant and learned ये भी क्या है? Opposite है. As are the words जैसे कि coward and hero ये भी क्या है? Opposite है. However, there are several other opposite meaning words for each of them. और भी हैं इनके अलावा इनके opposite word. जैसे कि एग्जाम्पल, opposites of pauper, rich, affluent, well to do. Opposite of ignorant, educated, informed, scholarly. Opposite of coward, brave, courageous and valiant. Now, in the exercise, what to do? Circle the word which is not opposite in meaning to the word in column A. One has been done for you. बेटा आपको क्या करना है? आपको जो अपोजिट नहीं है, ओके, वो सर्कल करना है. इज इट क्लियर? ठीक है. तो फर्स्ट देखेंगे, ये तो आपको दिया हुआ है, किया हुआ है. सेकेंड से करते हैं. फेरोसियस, इसका अपोजिट नहीं है. ठीक है. देखो क्या दिया है. सर्किल द वर्ड विच इज नॉट अपोजिट इन मीनिंग. अपोजिट नहीं है टू द वर्ड इन कॉलम ए. ये जो कॉलम ए में वर्ड दे रखे हैं इनका अपोजिट नहीं है, वो वर्ड हमें सर्च आउट करना है. ठीक है. तो फेरोसियस, calm and peaceful. Cruel is not opposite of ferocious. Is that clear? You will write this exercise in your book. It means you will do this exercise in book. book में ही करनी है आपको एक्सरसाइज. ओके. स्लोपी. स्लोपी का बेटा डिसऑर्डर्ड अपोजिट नहीं है. इज दैट क्लियर? डिसऑर्डर्ड इज नॉट अपोजिट ऑफ स्लोपी. क्लियर? प्रीकैरियस. प्रीकैरियस का अपोजिट अनस्टेबल. ओके. What we are circle? We are circle, not opposite meaning. Okay? Opposite नहीं है ये. Okay? Next, compassionate. Compassionate का opposite नहीं है बेटा. Kind. It is not opposite of compassionate. Then defunct. Defunct का opposite नहीं है बेटा. Tired. क्लियर? नेक्स्ट, cautious. cautious का unkind. Now turn the page. See, it is clearly visible to you now. You do it in your book. book में ही करना है. Now turn the page. In grammar portion, articles given to you. articles क्या होते हैं? आर्टिकल्स फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू टू टाइप्स के होते हैं. एक तो इंडेफिनेट आर्टिकल्स और डेफिनेट आर्टिकल. हम दोनों पढ़ेंगे इस चैप्टर में, इंडेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल. फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा आई वुड लाइक टू टेल यू ए एंड दी आर्टिकल होते हैं. यू नो इट वेरी वेल. ओके.
इनमें से कौन से डेफिनेट होते हैं और कौन से इनडेफिनेट होते हैं, दैट थिंग टुडे आई विल क्लियर टू यू. इज इट क्लियर? तो देखिए रीड करते हैं. वन डे द प्रिंसेसेस वर प्लेइंग विद अ बॉल आउटसाइड द प्रिसिंक्ट of the city, and in the course of the game the ball as well as Yudhishthira's ring fell into a well. Notice that we use the article a हमने यूज किया है when we talk about something for first time. बेटा listen to me very very carefully. जब भी हम when we talk about something for the first time, are you getting me? जब भी हम किसी चीज के बारे में पहली बार बात करते हैं, देखो बॉल का जो डिस्कशन है पहली बार किया है तो हमने अ यूज किया है. सो व्हेन वी यूज अ आर्टिकल व्हेन वी टॉक अबाउट समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम एंड इन अ जर्नल और नॉन स्पेसिफिक वे. जर्नल वे में स्पेशल वे नहीं है, ठीक है, नॉट अ नॉन स्पेसिफिक वे में वी कुड ऑल्सो यूज एन. हम एन भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कब यूज करेंगे, लिसन केयरफुली. इफ द वर्ड फॉलोइंग इट बिगिंस विद अ वाउल साउंड. ओके, वाउल साउंड होगी. साउंड कैसे होगी आगे क्लियर करूंगी बेटा मैं. एग्जाम्पल, द्रोणा बोरोड अ बो, फिक्स्ड एन. देखो एन, इसकी साउंड कहां से शुरू होती है, एन एरो, एन एरो, एरो एरो. और ये देखिए बॉल, ये कॉन्सोनेंट साउंड है और ये क्या है बेटा, वाउल साउंड है. तो जब वाउल साउंड होगी तो हम एन यूज करेंगे और कॉन्सोनेंट साउंड होगी तो हम क्या यूज करेंगे, ए यूज करेंगे. फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द स्ट्रिंग एंड सेंट इट राइट इनटू द रिंग. ओके, सम नाउन्स और एडजेक्टिव्स दैट बिगिन विद अ वाउल डू नॉट हैव एन इनिशियल वाउल साउंड. बेटा दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यू. कई बार क्या होता है, बचपन में हम लोग सीख लेते हैं जो वर्ड है ना वाउल से शुरू होता है उसके आगे एन लगा देते हैं, और जो है ना कॉन्सोनेंट से शुरू होता है उसके आगे हम ए लगा देते हैं. तो ऐसा नहीं है, हम साउंड चेक करेंगे. व्हाट वी विल चेक, साउंड चेक करेंगे. कई बार वर्ड वाउल से स्टार्ट होता है लेकिन उसकी साउंड कॉन्सोनेंट की होती है, और कई बार वर्ड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है और उसकी साउंड वाउल होती है. तो इसे क्लियर करेंगे कैसे. These words like a, not an before them. These words take. ये वर्ड a, not an before them. इनके आगे a आता है. जैसे देखिए यूनिफॉर्म. अब देखिए किससे स्टार्ट हो रहा है, यूनिफॉर्म वाउल से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन साउंड देखिए यू किसकी साउंड दे रहा है, यू, यह की साउंड दे रहा है. और यह क्या है, क्या है बेटा, यह कॉन्सोनेंट है. ठीक है, तो अ यूज करेंगे. देखिए यूरोपियन, सेम यूरोपियन कंट्री, यू की साउंड आ रही है, य की साउंड आ रही है, तो अपन क्या यूज करेंगे, अ. दोनों में बिफोर अ यूज करेंगे. सिमिलरली वर्ड्स दैट बिगिन विद अ कॉन्सोनेंट बट हैव इनिशियल वाउल साउंड लाइक एन और नॉट अ, यानी ऐसे वर्ड जो कि कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं लेकिन साउंड कैसी होती है उनकी, क्या होती है बेटा, वाउल साउंड होती है. तो उनके आगे हम एन लगाएंगे ना कि ए लगाएंगे. एग्जाम्पल देखिए बेटा एच से स्टार्ट हो रहा है. दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यू. ये आपके दिमाग में एक बार क्लियर हो गई ना बेटा, तो कभी आपसे आर्टिकल की मिस्टेक नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी होल लाइफ. ओके, तो ये क्लियर कर लीजिए. देखिए इसकी कैसे चेक करते हैं. ये इनिशियली लेटर क्या है, इसका एच है, तो अपन क्या कर देते हैं, ए लगा देते हैं. लेकिन इसकी साउंड सुनेंगे हम, आर, एन आर. तो साउंड कैसी है इसकी, वाउल साउंड है, तो क्या यूज करेंगे, एन यूज करेंगे. ऑनेस्ट, ऑनेस्ट साउंड क्या है बेटा, वाउल साउंड है, तो एन यूज करेंगे. एमपी वाउल साउंड है तो एन यूज करेंगे. वन थिंग इज गिवन टू यू, व्हाट इज दिस, रीड इट केयरफुली. ए एंड एन आर इंडेफिनेट आर्टिकल. देखो क्लियर हो गया, ए और एन इंडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं. एंड द इंडेफिनेट आर्टिकल इज यूज्ड विद सिंगुलर काउंटेबल नाउन. किसके साथ यूज होते हैं बेटा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ. ठीक है, बिफोर और बिफोर एडजेक्टिव्स दैट अकम्पनी अ काउंटेबल नाउन. और बिफोर एडजेक्टिव भी इसी यूज होते हैं जो कि एक नाउन से पहले आया है. ठीक है, नाउन के लिए ही यूज होते हैं बेटा आर्टिकल हमेशा. लेकिन अगर नाउन के साथ कोई एडजेक्टिव आया है, यानी नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव आया है,
तो उससे पहले आर्टिकल यूज होगा। जैसे अ ब्यूटीफुल ड्रेस, ड्रेस हो गया नाउन, ब्यूटीफुल हो गया एडजेक्टिव और अ हो गया आर्टिकल। क्लियर बेटा? नाउ टर्न द पेज। सी बेटा, विद phrases such as once or twice a week, 50 km an hour, rupees 200 a kilo, इनके साथ भी हम अ आर्टिकल यूज करते हैं। ठीक है? इज इट क्लियर टू यू? गुड। एग्जाम्पल, आई वर्क 10 hours a day. I water the plants twice a week in winter. After the verb form to be, एक वर्ब फॉर्म होती है टू बी, अभी बता देंगे कैसे होती है। When we refer to somebody's profession or to a virtue that somebody has, जब हम किसी के प्रोफेशन और वर्च्यू को क्या करते हैं, वर्च्यू होते हैं बेटा सद्गुण, को रिप्रेजेंट करते हैं, को बताते हैं, तो क्या यूज करते हैं बेटा? आर्टिकल। देखिए, MS धोनी इज एन एक्सीलेंट स्पोर्ट्स पर्सन। ठीक है? तो इसकी एक्सीलेंसी को बताया है। इज इट क्लियर? अब हम रीड करेंगे डेफिनेट आर्टिकल द। डेफिनेट आर्टिकल द अभी हमने डिस्कस किया ए और एन को कहाँ यूज करते हैं, अब हम द को डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा? देखिए, द डेफिनेट आर्टिकल इज यूज्ड विथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। और हमने अभी देखा था ए और एन का यूज कहाँ करते हैं बेटा? हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन, बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन हम ए और एन का यूज करते हैं, और द का यूज काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए। ठीक है? देखिए, वी यूज द, ये आपको पॉइंट्स दिए हो, यहाँ हम द का यूज करते हैं। लिसन टू मी। टू टॉक अबाउट समथिंग स्पेसिफिक और यूनिक, किसी स्पेशल थिंग के बारे में, और यूनिक, यूनिक मीन्स होता है अद्वितीय, अपने टाइप की, संसार में एक, उस चीज के बारे में बात करते हैं तो हम द का यूज करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, वेयर इज द CD आई गेव यू यस्टरडे। बेटा लिसन, वेयर इज द CD, CD आप कहोगे मैम CD तो कॉमन है, बहुत सारी CDs होती है, फिर ये द का यूज किस लिए किया? लिसन, वेयर इज द CD, वह CD that I gave you yesterday, जो मैंने आपको दी थी, तो CD क्या हो गई? स्पेशल हो गई, द स्पेसिफिक CD that I gave you। उस CD के बारे में बात हो रही है यहाँ पर जो मैंने आपको दी थी। ओके, सो हो गई ना स्पेशल, तो हम द का यूज करेंगे। बिफोर नेम्स ऑफ ओशियंस, ओशियन इसे ध्यान से सुन लीजिए बेटा, एक बार में माइंड में बिठा लीजिए, कभी मिस्टेक नहीं होगी। बिफोर नेम्स ऑफ ओशियंस, सीज, ठीक है, रिवर्स, डेजर्ट्स, है ना, माउंटेन्स, माउंटेन रेंजेस, ये इनसे पहले हम द आर्टिकल यूज करते हैं। देखो एग्जाम्पल, विद एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको, तो इनसे पहले ये आप अच्छे से रिमेम्बर करेंगे इसको, है ना, याद रखेंगे। ठीक है बेटा? किन किन के नाम से पहले? ओशियंस, सीज, रिवर, डेजर्ट्स, माउंटेन रेंजेस, इनके नाम से पहले हम द का यूज करते हैं। बिफोर द नेम्स ऑफ सम कंट्रीज सच एज, कुछ कंट्रीज जैसे कि द यूनाइटेड किंगडम, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द नीदरलैंड्स, है ना, इनसे पहले हम क्या यूज करते हैं? द यूज करते हैं। द बहामास, द फिलीपाइंस, द क्रेच रिपब्लिक। ठीक है? ये कंट्री है, कुछ कंट्रीज के नेम है, इनसे पहले हम द का यूज करते हैं। बिफोर नेम्स ऑफ सिनेमाज और थिएटर्स, सिनेमा और थिएटर्स के नेम से पहले द का यूज, जैसे कि द नेशनल थिएटर्स। होटल्स, ये आपको दिए हुए हैं, थिएटर, होटल्स, है ना, म्यूजियम्स, न्यूज़पेपर्स, स्पेसिफिक बिल्डिंग्स और मॉन्यूमेंट्स, इनसे पहले भी, और शिप्स, इनसे पहले भी विद एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है बेटा? तो इनसे पहले हम क्या यूज करते हैं? द यूज करते हैं। इज दैट क्लियर? बिफोर द नेम्स ऑफ फैमिलीज, पूरी फैमिली होती है, जैसे कि द कौरवास, द पांडवास, पूरी फैमिली के लिए, एंड द नेशनलिटीज, जैसे कि द फ्रेंच, द चाइनीज, इस तरीके से क्या यूज करते हैं बेटा? फैमिलीज और नेशनलिटीज से पहले द का यूज करते हैं। बिफोर द एडजेक्टिव्स यूज्ड एज नाउन, लिसन, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट तो सारे ही हैं, बट ये थोड़े आपको समझने में प्रॉब्लम होगी, तो मैं एक बार अच्छे से क्लियर कर देती हूँ। देखिए बेटा, बिफोर एडजेक्टिव्स, अब मैंने बताया आपको कि
आर्टिकल हमेशा नाउन से पहले यूज होते हैं, ठीक है, हमेशा नाउन से पहले। लेकिन एडजेक्टिव से पहले कैसे होगा, ध्यान से सुनिए। बिफोर एडजेक्टिव्स यूज्ड एज अ नाउन्स, उस एडजेक्टिव से पहले जो कि नाउन की तरह यूज हुआ है, टू रेफर टू ग्रुप्स ऑफ पीपल, पूरे ग्रुप ऑफ पीपल के लिए, जैसे कि द होमलेस, यानी पूरे जो होमलेस पीपल है उनके बारे में बात हो रही है। द अनएम्प्लॉयड, यानी जो जो सब अनएम्प्लॉयड है उनके बारे में बात हो रही है। द यंग, यानी यूथ के बारे में बात हो रही है, ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल। विद म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, द पियानो, द गिटार, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से पहले भी द का यूज होता है। ओके बेटा, नेक्स्ट, विद द सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की फॉर्म्स होती है ना, कौन कौन सी फॉर्म होती हैं? एक पॉजिटिव होती है, कंपैरेटिव होती है और सुपरलेटिव होती है। तो जो सुपरलेटिव फॉर्म होती है एडजेक्टिव की और एडवर्ब की, उनसे पहले हम क्या यूज करते हैं? द यूज करते हैं, जैसे कि द बेस्ट स्टूडेंट, द स्लोएस्ट एनिमल, हमेशा आपने देखा होगा। विद द एक्सप्रेशंस इन द मॉर्निंग, जैसे ये फ्रेजेस होती है ना कुछ, इन द मॉर्निंग, एक्सप्रेशंस भी कह सकते हैं इन द आफ्टरनून एंड इन द इवनिंग, बट नॉट विद द एक्सप्रेशन एट नून। ये इनसे पहले एट द नून नहीं बोलेंगे, एट नाइट नहीं बोलेंगे, एट द मिडनाइट नहीं बोलेंगे, एट द नाइट, है ना, इनसे पहले द का यूज नहीं करते। क्लियर बेटा? विद द वर्ड, जैसे कि कुछ वर्ड्स दिए हो, एयरपोर्ट, सिनेमा, थिएटर, बैंक, स्टेशन, व्हेन वी रेफर टू their main function or the services that they offer। जब ये वर्ड जो हैं एयरपोर्ट, सिनेमा, थिएटर, ये किसी फंक्शन के लिए और सर्विस के लिए किसी को हम ऑफर करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं? द यूज करते हैं। जैसे कि लेट्स गो टू द सिनेमा टुनाइट, चलो आज सिनेमा चलते हैं। बट देयर इज अ न्यू सिनेमा इन मॉडल टाउन, जब वहां जा रहे हैं तो द का यूज किया है, लेकिन किसी इंफॉर्मेशन दी है तो द का यूज नहीं किया। इज इट क्लियर? नाउ और भी हैं आपके नेक्स्ट पेज पर। अब नेक्स्ट पेज वाला हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तब तक बेटा आप ये जो मैंने आपको समझाया है आप अच्छे से रीड कर लोगे। ओके बेटा? और आपको जो आगे वाला है हम पढ़ेंगे ओमिशन ऑफ द आर्टिकल्स, यानी आर्टिकल का यूज कहाँ कहाँ नहीं करते। तो आप पेज नंबर 9 रीड कर लोगे। ये पेज नंबर 9 है, ये आप रीड कर लोगे, 9 और 10। इज इट क्लियर? टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम।